All right. So now coming on to this case study by the name of Network Solutions. Network Solutions. क्या कहता है जी ये case study? Introduction. Network Solutions is a privately owned high technology company established in 2002. पुरानी कंपनी है. पहले तो privately owned है, listed नहीं है, टेक्नोलॉजी कंपनी है और 2002 के अंदर बनी है. By computer engineer Kelvin Testa. ये टेस्ला का छोटा भाई निकाला है इन्होंने. It is situated that in the country of Red Land, a prosperous developed nation with a stable, well-established political system. ये गौर से देखना. Stable, well-established political system. Successive governments in Red Land have promoted technology by providing grants and tax incentives. इनका legal environment अगर आप देखो तो वो टेक्नोलॉजी को बड़ा सराहते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी ग्रांट्स और टैक्स के इंसेंटिव्स इन्होंने दिए हैं. गवर्नमेंट आज की दुनिया में तब तक टैक्स के इंसेंटिव्स देती रहेगी जब तक टेक्नोलॉजी वुड बी दी ओनली ऑप्शन. जिस दिन टेक्नोलॉजी वुड बी दी ओनली ऑप्शन उस दिन गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रॉपर टैक्स लगाएगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा लीडिंग इंडस्ट्री जो है भारत बन चुकी होगी. Tax credits are also provided to offset company investment in research and development. The government, like many governments worldwide, have invested heavily in a national telecommunications infrastructure. Tax rates इनको research development की expenditure के अगेंस्ट भी मिलते हैं, वैसे भी मिलते हैं. The government दूसरी governments की तरह जो पूरी दुनिया में हो रहा है have invested heavily in a nationwide telecommunication infrastructure. IT के infrastructure पे उन्होंने पैसे लगाए. However, in 2014 the country suffered an economic downturn that led many companies to postpone technological investment. मुल्क में कुछ हुआ, मसले मसाइल हुए, उसकी वजह से इशू आ गया. By 2014, Network Solutions employed 75 full-time employees in a new purpose-built factory and office unit. These employees were a mixture of technically qualified engineers working in research and development, factory staff manufacturing and assembly products, and a small sales and service support team. ये एम्प्लॉइज भाई इसके अंदर टेक्निकली क्वालिफाइड इंजीनियर्स भी थे, R&D रिसर्च एंड वर्किंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग थे, स्टाफ मैन्युफैक्चरिंग के लोग थे, असेंबली के लोग थे और सेल्स और सर्विस की सपोर्ट टीम मौजूद थी. ठीक है जी, ये सारा कंपनी का बैकग्राउंड. 75 एम्प्लॉइज. प्रोडक्ट एरियाज. इन 2014 NS had 3 distinct product services: data communication, network management and finally technical support. ये 3 इनके प्रोडक्ट्स थे: data communication, network management और technical support. NS sells data communication components to original equipment manufacturers, गाड़ियों बनाने वालों को जो है वो सेल करता था, who use these components in their hardware. Both the OEMs and their customers are predominantly large international companies. NS had established a good reputation for the quality and performance of its components, which are competitively priced. However, NS has been less than 1% of the domestic marketplace and faces competition from over 20 significant suppliers, most of who also compete internationally. Furthermore, one of the company's OEMs customers accounts for 40% of its sales in this area. Competition बहुत ज्यादा है, 20-25 लोग हैं, इंटरनेशनली भी कॉम्पीट कर रहे हैं, नेशनली भी कॉम्पीट कर रहे हैं. इसके अंदर फिर एक आध कॉम्पिटिटर ऐसा है जिसकी आपकी सेल्स का एक बड़ा कॉम्पोजिशन जो है वो भारत वो होल्ड करता है. द इंटरनेशनल मार्केट फॉर डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.3 ट्रिलियन टू 8.1 ट्रिलियन इन 2014. ठीक है, 2001 में बेसिकली ये 8.1 ट्रिलियन थी और 2001 में 3.3 थी और 2014 में 8.1 ट्रिलियन थी. सो आप कह लें तकरीबन 7 साल और 3-4 साल, 10-11 साल के अंदर ये 3.3 से 8.1 हो गई. यानी 120-125% का 150% का इंक्रीज यहाँ पे जो है आपके पास आ गया. फोरकास्ट फॉर 2015 and beyond predict growth from increased sales to currently installed networks rather than from the installation of new networks. 2015 की फोरकास्ट बनी है अगले साल की और इसके अलावा ये बताती है कि भाई ये जो currently installed networks हैं इनसे ही ज्यादातर आपकी सेल जो है वो आ जाएगी rather than from the installation of new networks. आगे क्या कहते हैं जी? The maturity of the technology means that product life cycles are becoming shorter. Success comes from producing high volumes of reliable components at relatively low prices. बहुत जल्दी इनोवेशन आती है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब कितना जल्दी आपको नए प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है, कितना जल्दी इनोवेशन आती है. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल छोटी होती जा रही है,
वक्त के साथ आपको चीजें जो है वो चेंज करते चले जानी है। अब जैसे गाड़ियों की एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। पहले के टाइम पे आए दिन आपको डिजाइन और शेप और ये सब चीजें चेंज नहीं करनी होती थी, लेकिन अब कंपटीशन इतना बढ़ गया, खासतौर पे एसयूवीज ने कंपटीशन इतना बढ़ा दिया है कि हर साल आपको अपनी गाड़ी में अब नए फीचर्स देने पड़ते हैं, या हर थोड़े साल में एक नया मॉडल लेके आना पड़ता है। अभी 2016 के अंदर ये सिविक का मॉडल लेके आए थे, लेकिन अब बारह इनको 2022 के अंदर फिर से एक जनरेशन लेके आनी है। सुजुकी अब इस दफा स्विफ्ट की नेक्स्ट जनरेशन लेके आ रहा है कि यार अब हमें मार्केट में कॉम्पीट करना है। एमजी आ गया, किया आ गया, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां आ गई। तो वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शॉर्टर हुई, ये भी यही कह रहे हैं। सक्सेस कम्स आउट ऑफ हाई वॉल्यूम्स और रिलायबल कंपोनेंट्स एट रिलेटिवली लो प्राइसेस। मियाँ प्राइस भी कम देनी है, वॉल्यूम भी हाई लेके आना है, फीचर्स भी लेके आने हैं, इंप्रूव भी करना है, और ये सब करना है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ये सब मिला के करना है आपने बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लो प्राइस, हाई वॉल्यूम, इंप्रूव शॉर्ट टर्म। बहरहाल एक कंपेरेटिव एनवायरनमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है। NS produces components in a relatively prosperous country where there is significant legislation defining maximum work hours and minimum wage rates. All new components have to be approved by an appropriate government approval body in each country that NS supplies. This approval process is both costly and time consuming. ये जो अपने कंपोनेंट्स मंगवाते हैं, जो कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली वो एक ऐसी कंट्री के अंदर करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन टाइट है। मतलब ये वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरह की कोई कंट्री नहीं है कि गधे घोड़े मजदूरों की तरह लगे हुए कोई मसला ही नहीं है। इनके टाइमलाइंस भी डिफाइंड है, मैक्सिमम वर्क आवर्स भी डिफाइंड है, और मिनिमम वेज रेट्स भी डिफाइंड है, और अप्रूवल्स में वक्त भी बहुत लगता है, अप्रूवल प्रोसेस भी बहुत लंबा है। The second product area is network management systems. NS originally supplied fault detection systems to a small number of large end users such as banks, public utility providers, and global manufacturers. Second product area is network management system. NS originally supplied fault detection systems to a small number of large end users. बड़े users थे, उनको ये fault detection systems जो है वो provide करते थे. NS recognized the unique requirements of each customer, and so it customized its product to meet the specific need and requirements. They pioneered a modular design which allowed customers to adapt standards to system modules to fit their exact networking requirements. The success of their product led to it being awarded a prestigious government technology award for technological innovation data communications. यहाँ पे इनकी स्टैंडिंग अच्छी है, इनका नाम अच्छा है. This further enhanced the company's reputation and enabled it to become a successful niche player in a relatively low volume market with gross margins in excess of 40%. They only have 2 or 3 competitors in this specialist market. Unlike component manufacturer, there is no requirement to seek government approval for new product network products. यहाँ पे ये बहरहाल इनके लिए आसानी है. All right, margins भी यहाँ पे इनके अच्छे हैं. Finally, the complexity of NS products mean that technical support is the third key business area. It has an excellent reputation for this support. ये आफ्टर मार्केट हो सकती है, टेक्निकल सपोर्ट हो सकता है, कोई मसला मसाइल है, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह ये हो सकती है. However, it is increasingly difficult and costly to maintain the required level of support because the company does not have a geographically distributed network of support engineers. All technical support is provided from its headquarters. This contrasts with the national and international support services of their large competitors. Finally, ये अपने सपोर्ट वाले एरिया के बारे में बताते हैं कि भाई हमारा थर्ड की बिजनेस एरिया है. यहाँ पे भी हमारी एक्सीलेंट रेपुटेशन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और कॉस्टली होता जा रहा है जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट इनको ला के देना है, क्योंकि इनका कोई जोग्राफिकली डिस्पर्स नेटवर्क नहीं है, इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, सपोर्ट इंजीनियर्स का छोटा सा नेटवर्क है, और सारा का सारा टेक्निकल सपोर्ट जो है वो यही लोग प्रोवाइड करते हैं जो कि हेडक्वार्टर से होता है. अब एक हेडक्वार्टर से ये सारी चीजें प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं है. दिस कंट्रास्ट विद द नेशनल इंटरनेशनल सपोर्ट सर्विसेज ऑफ देयर लार्ज कंपेटिटर्स. उन्होंने पूरी दुनिया में अपना सपोर्ट सिस्टम फैलाया हुआ है, कहीं से भी बारह उन्होंने इसके हवाले से जो है सपोर्ट मिल सकता. अब सारी दुनिया के लिए अगर एप्पल का यूनिट यूएसए में ही होता और वहीं पे रिपेयर सारी चीजें होती तो फिर मुश्किल हो जाता. एप्पल ने बाकी बड़ी कंट्रीज के अंदर हर जगह अपने ऑफिस, अपने स्टोर्स, ये चीजें जो है वो रखी हुई है जहाँ पे सारे काम जो है वो किए जा सकते हैं. पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन बाकी दूसरी जगहों पे बहरहाल है. चलें जी, करंट इश्यूज में आता है. एनएस currently manufacture 40% of the components used in the products. The rest of the components including semiconductors and microprocessors are bought
bought in from a few selected global suppliers. चंद ही suppliers से लेता है. Serious production problems have resulted from periodic component shortages, creating significant delays in manufacturing, assembly and customer deliveries. ये semiconductor chips और processes बड़े जरूरी होते हैं. ये अगर इक्विपमेंट में नहीं हो तो आपका टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट चल नहीं सकता, या चीजें जो है वो सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेट नहीं हो सकती. तो इसके बारे में कि भाई इन्हें चंद एक सप्लायर से ये चीज मिलती है, और फिलहाल जो हालात हैं वो थोड़े से इसके हवाले से बुरे हैं. Company is still a relatively immature organization. There are small functional departments for sales and marketing, technical research, R&D, manufacturing, procurement. Kelvin still personally undertakes all staff recruitment and staff development. He's finding the recruitment of high caliber staff a problem, with NS a small size and geographical location making it difficult to attract the key personnel necessary for future growth. ठीक है, ये थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है लोगों को हायर वायर करने में और ये सारी चीजें जो है वो लेके आने में एक geographical perspective से. Evaluate the macro environment of NS using a pestle analysis और competitive environment NS is competing in. पहले इसको करो, पार्ट बी को. ये तुम्हारा 5 फोर्सेस है. 5 फोर्सेस लगाओ, इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करो, देखो पावर ऑफ बायर्स कैसा है, सप्लायर्स कैसा है, राइवलरी कैसी है, सब्स्टिट्यूट्स का खतरा कितना है, और नए एंट्रेंट्स कितने आसानी से जो है इसके अंदर आ सकते हैं. इन पांचों चीजों को एनालाइज करना है, और इन पांचों चीजों को एनालाइज करके जो है यहाँ पे लिखना है. मैं इधर रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, 15 मिनट का आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ. गिविंग यू 15 मिनट्स. इन पांचों एलिमेंट्स के बारे में आपने एनालाइज करके जो है वो लिखना है. फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे. गिविंग यू 15 मिनट्स. बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो लोग रिकॉर्डिंग के लिए वो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, और पॉज करके अपने रजिस्टर में इसको पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें. सो नाउ अब हम इसको 5 डोमेन्स में अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहला हमारे पास एट द सेम टाइम यहाँ पर आ जाता है दी बार्गेनिंग पावर ऑफ बेसिकली कस्टमर्स. हमारी जो बायर्स की बार्गेनिंग पावर है, जो कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर है, वो किस तरीके की है. कंपनी हमने अंडरस्टैंड किया 2 चीज़ों में ऑपरेट कर रही है. एक बेसिकली डेटा कम्युनिकेशंस कंपोनेंट मार्केट है, और एक नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है. यहाँ पे हम पहले बार्गेनिंग पावर ले लेते हैं बायर्स की. बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स. 2 तरह की कंपनी ऑपरेट कर रही है. एक डेटा कम्युनिकेशंस कंपोनेंट मार्केट है, डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट मार्केट, और एक हमारे पास एट द सेम टाइम है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम. इन 2 चीजों के अंदर कंपनी काम कर रही है. नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम. रजाक कहते हैं सर जब क्वेश्चन में एनालाइज करने का कहा तो आप एनालाइज करेंगे क्या क्या चीजें, फैक्ट्स को स्टेट करेंगे. आपको कोई रिकमेंडेशन अभी एज सच नहीं देनी कि अब कंपनी को ये करना चाहिए, अब कंपनी को वो करना चाहिए. जिस तरह का एनवायरनमेंट है वो बता दो. एनवायरनमेंट को असेस करके फिर आगे फर्दर स्ट्रैटेजी क्या यूज की जाती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, मार्केट डेवलपमेंट हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, ये जो चीजें होती हैं बेसिकली ये हम आगे जाके इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे. कि अब हमें एक्सपेंशन की तरफ जाना है, या हमें प्रोडक्ट डेवलप करना है, या हमें मार्केट डेवलप करनी है, या हमें नई मार्केट में नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, डाइवर्सिफिकेशन जिसको कहते हैं, वो बात की बेसिकली स्टोरी है. ठीक है. डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में अगर तुम गौर करो तो इनके पास बहुत ही कम मार्केट शेयर है. हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में इनका 1% मार्केट शेयर है. और ये यहाँ पे सप्लाई भी किसको करते हैं, OEMs को करते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को. ये लार्ज इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं. यहाँ पे इन्होंने हमें अपने प्रोडक्ट एरियाज में बताया था. 1% वाली बात लिखी हुई थी यहाँ पे. ठीक है. 1% वाली चीज उन्होंने हमें बताई थी, और एट द सेम टाइम ये बताया था कि भाई इनका जो 40% का रेवेन्यू है वो OEMs की तरफ से आता है. मेजर कस्टमर, लार्जर कस्टमर इनका यहाँ पे OEMs है बेसिकली. सो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखने वाली है कि कोई बहुत बड़ा मार्केट शेयर नहीं है. 1% मार्केट शेयर इज बेसिकली 1% मार्केट शेयर का मतलब यूर मार्जिनल सप्लायर, यूर मार्जिनल सप्लायर. और इजीली ये OEMs आपको शिफ्ट कर सकते हैं, बड़ा आसानी से ये आपको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं. तो इधर बड़ा एहतियात से और कंपनी को ध्यान से काम करना होगा.
उनकी डिलीवरी टाइमलाइंस, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, किस तरह का कस्टमर रिक्वायरमेंट कर रहा है, ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि 40% सेल्स इनकी वहीं से आती है। अगर ये इस एरिया में अपने OEMs का उस तरह से ख्याल नहीं रखेंगे तो अपनी ये 40% सेल्स को भारत जो है वो लूज आउट कर जाएंगे, खो देंगे। सो पर्टिकुलरली स्पीकिंग, इनको इस एरिया के अंदर अपनी सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए OEMs का जो है वो खास तौर पे डिलीवरी टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी चीजों का भारत जो है वो ख्याल रखना होगा। जो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में इन्होंने हमें बताया था कि नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम ओरिजिनली सप्लाइड फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम टू स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज एंड यूजर्स सच एज बैंक्स वगैरह। यूनिक रिक्वायरमेंट्स इनकी पूरी करती है, कस्टमाइज तरीके से इनको जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सो यहाँ पे इनका शेयर अच्छा है, यहाँ पे इनका शेयर भी अच्छा है, और बहुत ज्यादा जो बायर की बार्गेनिंग पावर है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे बायर की बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो कंपेयर कर सकता है, 1% का मार्केट शेयर दूसरों की तरफ जा सकता है, कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग भी इतनी कोई ज्यादा नहीं है, कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग भी इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये लार्जर मार्केट शेयर है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मार्केट शेयर, रेपुटेशन वगैरह बहुत अच्छी है, और ये अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज्ड चीज प्रोवाइड करता है। सो इससे जो कंपैरिजन है वो इतनी आसानी से नहीं हो सकता। अब मुझे एक चीज कस्टमाइज मिल रही है, मेरे हिसाब से मिल रही है, तो फिर मैं इतना ज्यादा उसको दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करूंगा। यहाँ पे बार्गेनिंग पावर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बल्कि वीक के साथ साथ आप मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट इसलिए क्योंकि अगर आप उस तरह से अप टू द मार्क सर्विसेज नहीं देंगे तो वो ओवर द पीरियड आपको चेंज कर देंगे। शायद फौरी तौर पे ना करें क्योंकि आप कस्टमाइज सोल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन ओवर द पीरियड वो आपको चेंज कर देंगे। ठीक है, सो ये बेसिकली एनालिसिस यहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी इनकी सपोर्ट की है, नेटवर्क सपोर्ट। तो अगर इन्होंने प्रैक्टिकली इन दोनों एरियाज के अंदर अच्छा परफॉर्म कर लिया, डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनका बार्गेनिंग पावर बायर्स का वीक हो ही जाएगा, और कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी, प्रोवाइडेड परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस आई होगी तो फिर ये एरिया वीक जो है वो बन सकता है। ये हमारी बार्गेनिंग पावर हो गई बेसिकली बायर्स की। अगला आ जाता है जी बार्गेनिंग पावर ऑफ आवर सप्लायर्स। सप्लायर्स का पर्सपेक्टिव अगर देखते हैं तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर्स के केस में इन्होंने बताया था कि फ्यू ग्लोबल सप्लायर्स थे जिनसे ये अपना सामान ले रहे थे, फ्यू ग्लोबल सप्लायर्स। और बहुत हद तक इनका काम डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर। सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर अभी जो गाड़ियों की शॉर्टेज हुई थी वो भी इसी वजह से हुई हुई है, कोविड में इसके प्लांट बंद हो गए, सेमीकंडक्टर चिप्स की वजह से और माइक्रो प्रोसेसर्स की वजह से। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है इनके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और चंद ही बड़े ग्लोबल सप्लायर्स हैं जिनके साथ ये इसकी डील करते हैं। तो यहाँ पे सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर ऑब्वियसली स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और अगर तुम सप्लायर्स के अंदर इंप्लॉइज को भी इंक्लूड करते हो तो इनके करंट इंप्लॉइज की जो वर्कफोर्स है वो वैसे ही कम है, 75 एम्प्लॉइज हैं। और यहाँ पे इनको बताया जा रहा है कि यार इतनी आसानी से हाई कैलिबर स्टाफ मिलता नहीं है, हाई टैलेंट स्टाफ जो है वो ढूंढने में डिफिकल्टी होती है। सो इधर इनके एम्प्लॉइज भी बेसिकली स्पेशलाइज नेचर ऑफ इंडस्ट्री की वजह से, और एक स्पेशलाइज नॉलेज की वजह से, एक इंडस्ट्री की स्पेशलाइजेशन की वजह से, इनके एम्प्लॉइज की भी बार्गेनिंग पावर यहाँ पे स्ट्रांग हो सकती है। क्योंकि इंडस्ट्री इस तरह की, इतने प्लेयर्स काम कर रहे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, स्विच करना रिलेटिवली आसान है, स्विच करना रिलेटिवली आसान है। अब जैसे एफएमसीजीज में देखो, यूनिलीवर है, पीएनजी है, नेस्ले है, आरबी है, इसी तरीके से आईसीआई है, लोग इसी तरफ घूमते रहते हैं, इन्हीं कंपनीज में घूमते रहते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉइज की बार्गेनिंग पावर रिलेटिवली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि उनके पास ऑप्शन होते हैं। अगर उन्हें वो प्रमोशन, बोनसेस, ये चीजें नहीं मिलती तो वो फौरन से स्विच कर जाते हैं। इंडस्ट्रियल दौर में चले जाओ 20-30 साल, 40 साल पहले, वहां पे वर्ल्ड वॉर के बाद जब इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई थी, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं थे, उनके अपने बिजनेसेस नहीं थे, चाहे सेठ मारे कूटे कुछ भी करे, उन्हें बहरहाल वहीं पे काम करना पड़ता था, और वो वहीं पे जो है वो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो है वो रुके रहते थे। सो बहरहाल ये वाली सिचुएशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉइज में, अगर सप्लायर्स में एम्प्लॉइज को भी इंक्लूड करते हो क्योंकि वो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी बार्गेनिंग पावर भी स्ट्रांग है, क्योंकि हाई कैलिबर स्टाफ इतनी आसानी से मिलता नहीं है। ये इन्होंने हमारे पास सवाल में मेंशन किया हुआ था। सही है,
यहाँ पे इन्होंने एम्प्लॉइज के बारे में जहाँ बताया था। स्मॉल फंक्शनल डिपार्टमेंट्स और इतना अच्छा कैलिबर हाई कैलिबर स्टाफ जो है वो मिलना रिलेटिवली इनके लिए मुश्किल है, डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट की पर्सनल नेसेसरी फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो एम्प्लॉइज भी इनके बार्गेनिंग पावर में आ गए, ठीक है। सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा तुम्हारा कस्टमर्स का बार्गेनिंग पावर हो गया। तीसरा आ जाता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अगर न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट देखोगे तो ये बहुत लो है, इट्स वेरी लो। क्यों सर, ये क्यों इतना लो है? देखो बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है, बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है। एट द सेम टाइम इनोवेशन बहुत ज्यादा है, इनोवेशन बहुत चाहिए। प्रोडक्ट की जो लाइफ है दैट इज शॉर्ट, प्रोडक्ट की लाइफ है जो आपके पास है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है। इतना आसानी से कोई इतने एक्सपीरियंस और इन सारी चीजों के साथ एंटर नहीं हो सकता। इसमें आपको नॉलेज भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। इतना आसानी से वायरल कोई मतलब मुंह उठाया चला आ गया इस तरीके से, जितनी आसानी से जो है वो वायरल नहीं किया जा सकता। तो एक ये सपोर्ट यूं कह लो कि दोनों मार्केट्स के अंदर एक थोड़ा सा एक ये वाली चीज है कि इसमें एंटर होना इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए होती है, इनोवेशन चाहिए होती है। ये सारी चीजें जो है वो भारत इनको चाहिए होती है। फिर हमारे पास अगला फैक्टर है सब्सटीट्यूट्स का, कि भाई लोग सब्सटीट्यूट्स की तरफ शिफ्ट तो नहीं कर जाएंगे। सो टेक्निकली अगर मैं बात करूं, आईटी का सेक्टर जनरली भी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर जनरली भी बहुत वॉलेटाइल होता है। क्यों? जनरली यहाँ पे सब्सटीट्यूट्स का रिस्क हाई ही होता है, क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन बहुत तेजी से आती है। इनोवेशन इज वेरी फास्ट। थोड़े थोड़े अरसे में इतनी चीजें बदल जाएंगी, इतना कुछ बदल जाएगा। मेटावर्स की एग्जांपल कल मैं क्लास में दे रहा था पेस्टल को पढ़ाते वक्त। इतना रिलेटिवली जो है वो ये चीज बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है कि यहाँ पे इनोवेशन जो है वो बहुत तेजी से होती है। अगर आपने प्रोडक्ट को वक्त के साथ साथ अपडेटेड नहीं किया और कस्टमर की नीड्स को, इन सारी चीजों को एनालाइज नहीं किया, वो शिफ्ट कर जाएंगे आपके प्रोडक्ट से कहीं और, कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे। और टेक्नोलॉजी मिसाल है, मतलब हमारे घर में कि जो अमेजोन अब कॉन्सेप्ट्स लेकर आया है कि छोटे छोटे इक्विपमेंट आपके घर पे मौजूद हैं। हत्ता कि आप डस्टबिन अगर अमेजोन का यूज करते हैं तो वो डस्टबिन ये असेस कर लेता है कि यार इन्होंने ये चीज परचेस की थी, अब इसका रैपर इन्होंने इसमें डाल दिया और ये क्वांटिटी मुकम्मल हो गई है, अब इन्हें मजीद चीज की जरूरत होगी तो सिर्फ आप फोन पे ऑर्डर प्लेस करें, आपके घर पे वो चीज जो है वो पहुंचा दी जाएगी। इतनी बड़ी मार्केट और इतना बड़ा स्कोप है। तो सब्सटीट्यूट का रिस्क हमारे पास बहुत हाई है ड्यू टू इट्स वॉलेटाइल नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी वाला फैक्टर, इनोवेशन वाला नेचर। कंपनी अगर वक्त के साथ साथ इनोवेट नहीं करेगी, अपने आप को फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करेगी, तो ये पर्टिकुलर एक मसला कंपनी के लिए आएगा कि यार कोई दूसरा आके इनकी मार्केट को जो है वो वायरल स्नैच करके ले जाएगा। और इनके जो वैसे भी एक सेगमेंट में तो ये है ही 1%, एक ही सेगमेंट में ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे इनकी मार्केट शेयर भी अच्छा है, कस्टमाइज तरीके से लोगों को प्रोडक्ट्स भी देते हैं, उनकी नीड के हिसाब से चीज देते हैं। सो बहरहाल उस वाले सेगमेंट के अंदर जो चीज मिल रही है वो भी हाथ से चली जाएगी अगर ये इस चीज को समझ नहीं पाए तो, ठीक है। फिर इसके बाद है राइवलरी अगेंस्ट कंपेटिटर्स। राइवलरी अगेंस्ट कंपेटिटर्स, सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग राइवलरी है। नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, दोनों जगह पे। अब ये जो दो बिजनेसेस हैं, एक बिजनेस इनका डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट वाला है, दूसरा नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम वाला है। नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम में फिर भी इनके पास शेयर अच्छा है तो वहां पे राइवलरी कम है, स्टिल लो राइवलरी इन नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाई? क्योंकि वहां पे वो कस्टमाइज सॉल्यूशन और प्रीमियम सॉल्यूशंस देते हैं, क्वालिटी वगैरह बहुत बेहतरीन होती है, कस्टमाइज प्लस प्रीमियम। लेकिन कोई पॉसिबल मतलब بعید नहीं है कि कल को कोई इस चीज को अडॉप्ट कर ले। और यहाँ पे तो जो इनका कंपोनेंट वाला बिजनेस है, कंपोनेंट वाले बिजनेस में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इन्हें इंटरनेशनल नेशनल दोनों लेवल्स पे कॉम्पीट करना पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 1% इनका मार्केट शेयर है, ज्यादा शेयर भी इनके पास नहीं है।
और इनके कस्टमर्स OEMs हैं, OEMs बहुत ज्यादा बड़े ऑप्शंस इनको मिल जाते हैं, अच्छे सप्लायर्स मिल जाते हैं, ये वेल कनेक्टेड होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इनको बहरहाल अप टू द मार्क अगर सर्विस ना मिले ये उठा के उसको चेंज कर देंगे। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर की क्या हैसियत है कि वो नेस्ले से कॉम्पीट करेगा, नेस्ले के पास बहुत ऑप्शंस है, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं समझता है उसकी बात उस तरह से परफॉर्म नहीं करता, नेस्ले किसी और को हैंड ओवर कर देगा। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जो राइवलरी एक सेगमेंट के अंदर है वो तो बहुत ही स्ट्रांग है, इस सेगमेंट में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है कंपोनेंट वाले में, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे कस्टमर्स जो कस्टमाइज जो प्रीमियम सर्विस दे रहे हैं वहां पे अभी इतनी राइवलरी फेस नहीं कर रहे, लेकिन अगर इसको हैंडल नहीं करेंगे तो बहरहाल फिर उसके बाद अपने टेक्निकल सपोर्ट को भी यहाँ पे ये खो देंगे। ये सारी चीजें बहरहाल पैराग्राफ के फॉर्म में हमें पांचों चीजों को जो है वो लिखना था और मेंशन करना था और इसके आंसर को जो है वो फॉर्मुलेट करना था। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द 5 फैक्टर्स, पांचों जो यहाँ पे पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल है इसको हमने अंडरस्टैंड किया। इसका जो कीवर्ड है वो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है। रिक्वायरमेंट में हमेशा जब भी कंपटीशन के हवाले से, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के हवाले से आपसे बात हो रही है तो समझ जाओ कि ये 5 फोर्सेस की बात कर रहा है, ये कीवर्ड है कंपटीशन। पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल ये बेसिकली प्राइमरीली कंपटीशन को बताता है कि यार कितना रिगोरस आपको किसी मार्केट के अंदर कॉम्पीट करना है और कंपटीशन का एक्सटेंट कितना हाई है, ये बारह इससे जो है अंदाजा होता है। फिर एक रिक्वायरमेंट पेस्टल एनालिसिस की थी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज रियली गुड। इसके साथ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अभी रिसेंटली डाउन टर्न से गुजरा है, सोशली कोई मसला नहीं है, मतलब कंपनीज इनके प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं, टेक्नोलॉजिकली बड़ी इनोवेटिव इंडस्ट्री है, वक्त के साथ साथ बदलती चली जाती है, इसका बारे में इनको ख्याल करना है। एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एनवायरमेंट बड़ा कंपेटिटिव है और 1% वाले सेगमेंट में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, यहाँ पे प्रीमियम और कस्टमाइज सर्विसेज दे रहे हैं। और फिर लीगल पर्सपेक्टिव से इंसेंटिव्स हैं, अच्छे टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह मिले हुए हैं और बहुत ज्यादा आईटी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस और स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं है, कंपेरेटिवली बेहतर लॉज एंड रेगुलेशंस हैं और बेहतर इंसेंटिव्स वगैरह मौजूद हैं। सो पेस्टल एनालिसिस भी इसका इस तरह से एक शॉर्ट फॉर्म में जो है वो हमने डिस्कस किया और 5 फोर्सेस जो पॉटर्स की हैं वो भी डिस्कस की। किसी का कोई सवाल है भाई यहाँ तक? यहाँ पे हमारी ये केस स्टडी जो है वो मुकम्मल हो गई।